ہیلو، السلام علیکم مجاہد ملت حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ میں اطہر حسین قادری، خاکے غریب نواز ملا اطہر حسین قادری، سرونج ایم پی مدھیہ پردیش سے۔ اچھا، مفتی اطہر قادری صاحب بول رہے ہیں؟ اور خیریت ہے جناب؟ ہاں صاحب، اللہ کرم ہے، فرمائیے صاحب۔ آپ سنائیے، کیا حال چال ہے؟ کیا حالات چل رہے ہیں؟ اجمیر شریف کے متعلق بڑے لفڑے کہ صاحب ہم تو نعرے لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کیا تماشے بازی کر رکھی ہے ان لوگوں نے۔ اصل میں اب کیسا ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا یہ 800 میرے خیال سے 11واں عرس ہے، 11واں ہے نا؟ اور آج تک سرکار کی بارگاہ میں 800 سال ہو گئے، ایسے تماشے کبھی نہیں ہوئے۔ ہاں، جیسے یہ سال ان لوگوں نے نہیں، یہ جب سے یہ بریلیت جو ہے، جس نے سنیت کا اتنا بگاڑا کر دیا، اہل سنت کو اتنا تباہ و برباد کر دیا، ایسی ہٹ دھرمی آج تک 800 سال ہو گئے، اتنے بڑے بڑے بزرگان دین آ کر گئے۔ اگر 100 صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا تو 807 میں اس سے پہلے جو 7 مجدد آ کر گئے ان کا تو نام آپ کو تعجب ہوگا میں بتاؤں، ہاں، پوری دنیا میں ایک ایسا کوئی گھر بتا دیں جس میں 3 مجدد ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یا 2 ہی؟ اور نہیں، میں یہ انڈیا میں ایک گھر ایسا ہے بریلی میں جس میں ایک ہی گھر میں 3 مجدد پیدا ہوئے ہیں۔ ارے اب تو وہ قیامت تک کھڑے اس گھر میں مجدد ہی پیدا ہوں گے، اب تو اور اس میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ بول رہا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے جتنے مجدد آئے ہیں، وہ مجدد بیچارے کم، نوز باللہ، ایسا لگتا ہے جیسے کم جانکار تھے، کم پڑھے لکھے تھے، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کا نعرہ لگنا چاہیے تھا، ان کے مسلک کا نعرہ لگنے چاہیے تھا، یا ان کا لکھا ہوا سلام پڑھنا چاہیے تھا۔ وہ بیچارے جانکار نہیں تھے اتنے، مگر اس صدی کے مجدد کے جو معاملات ہیں اور ان کے ماننے والوں کے جو مسئلے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں غلاموں کے نعرے لگیں گے۔ اور بخوب کسی نے ابھی ایک بیان دیا ہے، میرے خیال سے وہ عالمگیر اشرف صاحب نے، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے لوگ کہیں گے ہٹو ہٹو، شیر آیا، اور یہ میرے ابا زندہ باد، اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آ کے بولیں گے ہٹو ہٹو، سنیوں کا شیر آیا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں بہت پیارا جملہ ہے کہ کتے آتے ہیں، شیر نہیں آتے ہیں۔ ہاں، اور یا نبی سلام علیکہ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یا سے ہی دیوبندی جماعتی اہل حدیثوں کو تکلیف ہے۔ ہاں، مطلب جو آپ نے فرمایا کتا سے مطلب یہ ہے کہ لوگ کتا بن کے آئیں گے، مطلب یہ آپ کی مراد یہی ہے اس میں؟ جیسے آپ نے کہا کتے آتے ہیں، مطلب وہاں پر آدمی یہ لوگ یہ بھی پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو ایسا بول دیا۔ آپ کا جو نیت یہ ہے نا کہ لوگ کتا بن کے آتے ہیں، خادم بن کے آتے ہیں، یعنی ارے بابا، ہمارا تو بولنے مطلب ہے کہ بادشاہوں کی بارگاہ میں غلام بن کے جایا جاتا ہے، بادشاہوں کی بارگاہ میں بادشاہ شہنشاہ بن کے نہیں جایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بات میں پکڑ کرتے ہیں اور خود نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے وہ تو ان کے مولانا صاحب نے کہا ہے، ان کے مولانا نے تو اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ نسل کا کتا بنا کے پیش کیا۔ یہ تو پیروں کی پیروں کی پیروں کی پیروں کی بارگاہ ہے غریب نواز سرکار کی۔ ہاں ہاں، مہاراجہ شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ اور حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 14 مسلک تو 18 ہونے چاہیے، یہ 5 ہو کے کیسے رہ گئے؟ 18 مسلک ہونا چاہیے تھا۔ ارے باپ رے باپ۔ اچھا، میں نے مطلب کہ اس سے پہلے بھی سنا آپ کے تعلق سے، اور انشاءاللہ یہ میں اچھا وہ آپ کا کال آیا کہ گواہی بھی ہو جائے، شہادت بھی ہو جائے۔ آپ پہلے خود بریلوی تھے؟ میں تو کرتا بریلوی الحمدللہ رہا ہوں کافی ٹائم، لیکن اب جب سے یہ حالات دیکھے ہاں کہ امام ربانی مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام بھی نہیں لیتے ہیں عام طور سے، ہاں، کبھی بھول لیتے ہیں کہ زبان پہ یاد ہو جائے، ورنہ ان کی جو خدمات ہیں اس کو بتاتے ہی نہیں ہے، جبکہ وہ 1000 سالہ مجدد ہیں۔ اچھا، الف کے معنی 1000، ثانی معنی دوسرا، یعنی دوسرا 1000 سالہ جب لگنے لگا آپ اس کے مجدد ہیں 1000 سالہ۔ اچھا، اور ان کے بیٹے حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مریض تھے۔ ارے باپ رے باپ۔ اور میں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ لوگ کوئی جشن نہیں مناتے بریلی میں، نہ حضرت عمر فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت علی کے نام کا، نہ حضرت خالد بن ولید کے نام کا، نہ حضرت معاذ بن جبل کے نام کا، نہ سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کا، نہ امام زین العابدین جو سید سجاد ہیں، جن کو لقبی زین العابدین کا ملا ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، اور سید سجاد یہ ان کے شجرے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ پھر بھی مرتبہ نہیں بتا دے، پڑھتے ضرور ہے نام۔
सजदा करने वालों के सरदार सैयद सज्जाद। क्या बात। फिर उनके बेटे, फिर इमाम बाकर, फिर इमाम जाफर, हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इमाम अली रजा, फिर इमाम तकी, इमाम नकी, लास्ट में हजरत इमाम हसन अस्करी। इनमें से ये आज तक मैंने जब देखा पूरे इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में, इन्होंने इनमें से किसी के नाम का बड़ा जश्न ही नहीं रखा आज तक। अच्छा, फिर ये किसका जश्न मनाते हैं? ये अजहरी मियां, मुफ्ती आजम हिंद, फाजिल बरेलवी, इन तीन के नाम के जश्न पूरी दुनिया में हो गए। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा इनसे तो दूरी रहना बेहतर है, क्योंकि ये तो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को ये लोग तो। अच्छा। और एक और ताज्जुब की बात बताऊं, आपको हैरत हो जाएगी। हाँ। अच्छा, आप सत्य दिल से बताना, जैसे मैंने क्या आप ये या किसी से पूछना, क्या कभी कोई जश्न ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो हवाई जहाज के ऊपर हुआ हो अल्लाह के रसूल के नाम पर? अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने तो नहीं सुना आज तक। यानी पूरी दुनिया में ऐसा कभी जश्न नहीं हुआ कि जो हवाई जहाज में मनाया गया हो। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बम्बई में मैं मौजूद था, भिवंडी में, फिर मैं हाजी अली की दरगाह पे गया, नहीं हाजी मलंग रहमतुल्लाह अलैह, तो उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मैंने वो जश्न फाजिल बरेलवी भी देखा है। वो हवाई जहाज जिसमें रजा एकेडमी ने 500 या कितने टिकट निकाले थे, 200 या 500 टिकट के भाई फ्री में, तो वो हवाई जहाज को मैंने उस बार उड़ते हुए देखा हाजी मलंग के ऊपर। अच्छा, यानी उसमें फाजिल बरेलवी का जश्न हो रहा था, ये फख्र कर रहे थे कि जश्न फाजिल बरेलवी हवाई जहाज में मनाया गया। वाह, अरे तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया कि अल्लाह के रसूल का जश्न तो कभी हवाई जहाज में नहीं मनाया, फाजिल बरेलवी का जश्न हवाई जहाज में मना लिया लोगों ने। असल में ऐसा है मुफ्ती साहब, मेरा तो एक, मैं क्या बताऊं, दिल बैठ जाता है कि इतने औलिया अल्लाह आकर गए इस रूहे जमीन पर ज़ाहिरी दुनिया से, उसके बाद न जाने कितने बड़े बड़े आलिम आए और ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, मगर ये इतनी हट धर्मी आज तक किसी औलिया अल्लाह के मानने वालों ने नहीं की, ना किसी औलिया अल्लाह ने करवाई, ना किसी ने जबरन अपने आप को मनवाने की कोशिश की। मगर ये जो हो रहा है ना, इससे बहुत दिल बैठ जाता है। इस न जाने कितने लोग यही देखकर देवबंदी हो गए, अहले हदीस हो गए। अच्छा हजरत, आपने भी इतनी उम्र हो गई, हमारी भी हो गई, क्या कभी अजमेर के खुद्दाम को, मुजाहिदीन को आपने हिंदुस्तान का दौरा करते हुए भी देखा है? हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। क्या कभी उन मुजाहिरों ने ये रट लगाई कि मसलक गरीब नवाज, मिशन गरीब नवाज पे मानो, बस किसी को मत मानो, ऐसा कभी उन लोगों ने कहा खुद्दाम ने? अरे आप जब सरवर चिश्ती का बयान सुनोगे तो उन्होंने कहा या गौस के नारे लगने चाहिए, हाँ, या फरीद हक फरीद के नारे लगने चाहिए, या साबिर हक साबिर के नारे लगने चाहिए। पहली बात तो आप एक बात ये समझ लो मुफ्ती साहब, अगर ये अजमेर शरीफ के खुदाम बाहर नहीं भी निकले ना, और उन्होंने कभी मसलक के गरीब नवाज का प्रचार भी नहीं किया हो, मसलक के गरीब नवाज की प्रचार किसी खुदाम को करने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज को हिंदुस्तान मेरे मदीने वाले ने ही भेज दिया है। अब इसमें कोई क्या प्रचार करेगा, किसकी क्या औकात है, जब हिंदुस्तान का बादशाह बनाकर गरीब नवाज को मदीने वाले ने भेजा है। अब इसमें अगर कोई दखल देने की कोशिश करे या मदीने वाले के ऑर्डर के ऊपर कोई आने की कोशिश करे, रसूल की बात का जो इनकार करते, फिर तो उसका ईमान ही कहाँ बचता है, वो तो काफिर हो जाता है। अब बताइए, जो तर्जुमा देवबंद के उलमा करते हैं वही हजरत अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने किया तफसीर अल-मशा जिल्द अव्वल 2 में। वो तो मेरी वीडियो चल रही बाकायदा, आपने तो सुनी होगी वो तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी है, लेकिन आपने पूरी तफसील से नहीं बताई अभी। अरे उसमें और अभी 116 पे बताना, जो सूरह फतह की पहली आयत पे तर्जुमा किया है कि हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला था, माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। बाप ने तर्जुमा किया है इस तरह, बेटे ने किसी और हदिया का सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा उन्होंने किया, अल्लाह आपको सीधी राह चलाए। फाजिल बरेलवी ने किया, अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए। बाप का माने के बेटे का माने, इन दोनों के माने। उसमें तो और ऐसे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह 7-8 पॉइंट तो ऐसे और हैं, उस पे भी मैं भी वीडियो बताऊंगा। उसमें तो एक पॉइंट ऐसा है कि आप सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। फला आयत उतरी है, तब जाके नबी को मालूम पड़ा कि वो नबी है। तो अब बताइए, ये लोग तो कहते हैं कोई अगर कहते हैं 40 साल में नबी बनाया जाए तो ये लोग उस पर फतवा लगा देते हैं। उस किताब में बाकायदा लिखा हुआ है कि फला आयत उतरी जो तब सरकार को मालूम पड़ा कि वो नबी है, वरना मालूम नहीं था। ये तफसीर आलम नसरा जो मौलाना नकी अली खान साहब ने लिखी है। 14 आप पढ़ ले, वो जो अभी नई छपी है ना इमाम अहमद अकेडमी से, उसमें लिखा है, ए हबीब मेरे जो उमूर के तुझसे कब्ल नबुव्वत वाक़ हुए, जो क़ुसूर के आइंदा वाक़ होंगे, सब माफ किए। 14 पे
अरे बाबा नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, रसूल अल्लाह से कौन से गुनाह आगे पीछे हो जाएंगे, और नबी वैसे भी मासूम होते हैं, हर खता से पाक होते हैं। तमाम नबी तमाम फरिश्ते मासूम हैं। और दूसरी चीज ये है ना कि मुफ्ती साहब, ये लोग असल में ना उम्मत को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अब आप मुझको एक बात बताइए, ये बहुत समझने वाली बात है। मुझको एक मुफ्ती ने फोन किया बरेली से, मुफ्ती ज़हीम, और उन्होंने बोला कि आप महफिल समा के ताल्लुक से जो आवाज उठा रहे हैं हमारे आला हजरत पर, अगर आप उनका लिखा हुआ तरीका समझ जाएं तो वो जो उस पे अमल कर ले उसका बेड़ा पार हो जाए। मैं बोला इससे पहले जितने औलिया अल्लाह आए, मसलन गरीब नवाज, साबिर पाक, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उस सरकार बंदे नवाज, सरकार वारिस पाक, सरकार मदारे पाक, तो वो सब क्या है मौलाना अहमद रजा से कम इल्म थे या कम जानकार थे? बताइए आप। वो जो जिस तरीके से महफिल समा की, वो लोगों का जो तरीका था, अगर उस तरीके से वो लोगों ने किया है, और तो एक बात बताइए, अगर वो उनका तरीका आज का मौलवी कोई बोले कि वो गलत था, तो मेरा यही सवाल है कि वो लोग गलत थे, क्या उनका तरीका गलत था, कि उनको कम इनसे इल्म कम था? मगर क्या होता है मालूम है, ये हट धर्मी, ये जो मतलब हम जो बोले वही सही है, हम जो बोले वो मानना पड़े, इसीलिए तो लोग तौबा कर रहे हैं, बरेलियत छोड़ कर भाग रहे हैं। भागने की वजह क्या है? मैंने सुना है ख्वाजागान हज़रत शेख मजीद चिश्ती अजमेरी के जो बड़े खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ईरान गए थे शायद, या किसी मुल्क में गए थे, तशरीफ ले गए थे, वहाँ पर बादशाह ने पाबंदी लगा दी थी कव्वाली गाने वालों पर, और वो ये क्या कहते हैं सात बाग वालों पर, जेल में डाल दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने बशारत दी बादशाह को कि हमारे दोस्त आ रहे हैं, इनका ख्याल रखना। जब तो उनकी उम्र भी ज्यादा ही थी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। अब बादशाह ने इंतजाम कर दिया कव्वालों का कि भाई हमें तो कव्वाली की जरूरत है। बादशाह ने इंतजाम कर दिया, कहा हजरत मैं सात बाग बजाने वाले तो जेल में बंद हैं, अब मैं कव्वालों का तो मैं इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन सात बाग वालों का इंतजाम नहीं कर पाऊँ, जेल में बंद है वो तो। ठीक है तुम तो सात बाग ला के सामने रख दो बस। तो साल बाद लाके रखेगा तो वो ऑटोमेटिक बजने लगे साल बाद। जियो 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 जियो। ये बख्तियार काकी के जवानी का मामला है, यानी कम उम्र ही का, जब बुढ़ापा आया वो ये किस किताब में लिखा हुआ ये वाकया पूरा? ये मशहूर है, इंशाल्लाह मैं जैसा भी होगा हवाला मालूम करके बता देंगे। इंशाल्लाह ये हवाला मालूम करे और मुझको बताएं। दूसरी चीज ये है कि एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे इससे पहले तमाम औलिया अल्लाह की बारगाहों में चादरें जो चढ़ती थी वो लोग क्यों नहीं रोके? वो लोगों ने क्यों नहीं मना किया? इतने बुजुर्गान दीन आए, इतने मुजद्दिद आए, इतने पढ़े लिखे लोग आए। अच्छा खुद मौलाना अहमद रजा का जब उर्स करते हैं तो उसमें चादरों पे चादर, वहां तब कोई नहीं मना करता कि मत चढ़ाओ चादरें। और मेरे पास इस साल मना किया 100 साल के बाद में। नहीं, मेरे पास इस साल की भी वीडियो मौजूद है। नहीं तो सही, लेकिन इस साल इन लोगों ने मना किया था। अरे और पहली बात तो मौलाना अहमद रजा ने खुद मना किया उर्स मत मनाओ, तो ये किस बात पर मौलाना अहमद रजा का उर्स मनाते हैं मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ। अच्छा कभी आपने सुना इनके वालिद के नाम का उर्स सुना कि वालिद के नाम का उर्स हो रहा? अरे क्यों करेंगे जब खुद मेरा तो मानना है कि मौलाना अहमद रजा साहब का भी उर्स नहीं करना चाहिए, उन्होंने उर्स करने से मना किया है। बताइए आप। और ये लोग हर साल उर्स करते हैं और कम बेश 5-10 हजार आलिम जमा होते हैं कम बेश। हाँ समझे। अब मुझको एक बात बताओ, ये बेचारे अजमेर शरीफ के दरगाह के जो खुदाम सैयद हैं उनको ये चरसी और चादर चोर और ये फलाना और ये धमाका और ये और वो न जाने क्या क्या उनको तोहमतें लगा रहे हैं। जो अनवारुल बयान है उसका तो हवाला मैं दे सकता हूँ। अनवारुल बयान जो मशहूर है ना इंदौर वालों की, हाँ उसका हवाला मैं दे दूंगा। रमजान शरीफ में मुफ्ती बदरुद्दीन साहब आए हुए थे बढ़िया के, बामल आलिम थे, तो काबिल आलिम थे। तो उनके मुरीद ने खादिम की बुराई कर दी रमजान शरीफ में। हज़रत फना सैयद साहब ने ऐसा किया, यानी खाने में कोई कमी बताई, जो भी किया। साहब तुमने हमारे यहाँ के खादिम की बुराई क्यों की अजमेर शरीफ के? साहब तुम तौबा करो, वजू करके आओ, तौबा करो, उनसे जाकर के माफी मांगो कि तुमने यहाँ के खादिम की बुराई क्यों की, गीबत क्यों की। तो उनसे तौबा करवाई, बाकायदा किताब में है अनवारुल बयान में। अरे जनाब मेरी एक बात समझो मुफ्ती साहब, ये जितने मदरसे हिंदुस्तान में चल रहे हैं अहले सुन्नत के नाम पर, उसमें से 94% 95% मदरसे ये बरेली मसलक के लोग चला रहे हैं। बराबर है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में उर्स तो 1 साल होता है,
है ना, हर औलिया अल्लाह की बारगाह में उर्स एक साल में जो बड़ा उर्स होता है, ये हर महीने हर दिन ये लोग चंदे पे निकलते हैं, ये चंदा काटते हैं दरगाह मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर। अब रमजान का तो इनका ये मामला हो चुका है कि जो चंदा काटने निकलेगा वो 40% लेगा, 60% मदरसे को देगा। अब तो ऐसा भी हो चुका है कि 60% वो लेगा, 40% मदरसे को देगा, है ना। 10 बच्चे होते हैं, नाम दारुल उलूम रख देते हैं। 10 बच्चों में कागज कौन सा दारुल चला, दारुल उलूम के माने नहीं जानते। दार माने घर, उलूम माने उलूम का घर, तो कौन से उलूम पढ़ाया जा रहा है? यानी दारुल उलूम का मतलब है कि अलिफ से लेके बुखारी शरीफ तक की तालीम हो। ये अरे साहब, ये इतना चंदा काटते हैं, इतना चंदा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, जकात ये खाएं, सदका ये खाएं, फितरा ये खाएं, बकरी ईद में खाल ये ले जाएं, वो जबा करने का पैसा ये लेके जाएं। अब मुझको बताओ, बकरी ईद में इनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि जो बकरा ला रहा है वो हराम वाला है कि हलाल वाला है। चंदा जब ये सदका जकात खा लेते हैं जाके बड़े बड़े सेठों के पास बैठकर, भंगार वाले के पास, इसके पास, उसको ये नहीं मालूम है कि कांटे का पैसा है कि किसका पैसा है। फलाना सेठ लाख रुपया दिया तो ले लिए 2 लाख, सारे बड़े बड़े पैसे वालों को मुरीद करके उनको बेवकूफ बना के, अरे वो अगर वो अल्लाह ताला उनको अकल दे, वो गरीबों में सदका करें, बेवाओं में दें, यतीमों में दें, जो बच्चियां बेसहारा घरों में बैठे हैं जिनके रिश्ते नहीं लगते उनके रिश्ते लगाएं, यतीमों को घर बनवा के दें। कुरान भी वही कह रहा है, मगर ये मुल्ला, ये जकात माफिया, इसने पूरी उम्मत का पैसा खा लिया। आज आप बोली लोगों को ये कुरान में बेशक सबका फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए, मजदूरों के लिए ये दर्जा बयान किए। बाकायदा कुरान शरीफ ने पूरे हालात बयान किए किसको किसको। दूसरी चीज ये है ना, इन्होंने बड़े बड़े सेठों को इन्होंने हाथ में रखकर मारे पूरे उम्मत का पैसा खा लिया। इनके मामलात देखो, पहले साल जगह लेते हैं, दूसरे साल ईंटा गिरवाते हैं, तीसरे चंदे में सिरमिट और सरिया गिराते हैं, चौथे 5वें रमजान में तो इनके घर बन जाते हैं। ये इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतना लूटते हैं उम्मत को। इनकी बैंक के बैलेंस इतनी ज्यादा है कि मैं अभी आपको बताऊं तो आप हैरत में पड़ जाए। अरे भिवंडी में कोई एक ऐसा आलिम है इनका, नौज बिल्ला, वो अभी पकड़ा गया, 50 लाख रुपया लेके भागा हुआ है। उसके बाद एक आलिम का और मुझको पता लगा कि जकात पे पैसा देता है, वो अल्लाह तो ब्याज पे पैसा देता है। अब इनके पास पैसा रखने की जगह नहीं है। रामनगर जाके देखना, रामनगर नैनीताल में पड़ता है। हाँ, छोटा सा शहर है, यानी तहसील है, 60-70 हजार की आबादी होगी, लाख की होगी समझ लो। लेकिन रामनगर वालों ने, वहाँ के मुसलमानों ने इतनी बड़ी शानदार जामे मस्जिद बनाई है कि आप देखेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे। यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिदों में है। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ उन लोगों ने कोई चंदा नहीं किया, यूपी भर से या आसपास से भी नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत करीब वालों से लिया होगा, लेकिन मुरादाबाद वालों से नहीं लिया जा रहा। अच्छा, लेकिन इतनी बड़ी शानदार, आप जाके देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि रामनगर की छोटी जगह में इतनी शानदार जामा मस्जिद कैसे बना दी लोगों ने, माशाल्लाह। लेकिन आप हामिदी मस्जिद देखो जो बरेली में बनी है, दुनिया भर के मुरीद, करोड़ों मुरीद जो बताए जाते हैं, और हामिदी मस्जिद उसके मुकाबले आधी है। अच्छा, वो भी जब मैं गया था उस टाइम पे तैयार नहीं हुई थी, 3-4 साल पहले, यानी तैयार नहीं हो पाई थी, और रामनगर की तैयार हो गई। तो ये हामिदी मस्जिद का इतना दुनिया भर से चंदा कहाँ से आ रहा चंदा, ये लोग कहाँ बताते हैं। और इतनी आलीशान मस्जिद भी नहीं बना पाए जितने हिसाब से चंदा आ रहा है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। वो असल में देखो, एक बात मेरी सुनो, आज उम्मत का मसला ये है, आज मुसलमान बच्चियों को ये हाल है कि आप अगर देखो तो गैरों के साथ भाग जा रही है। क्यों? माँ बाप परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, मामलात खराब हैं, बच्चियों के निकाह नहीं लगते, दहेज इतने मांगे जाते हैं कि बेचारा बाप बूढ़ा गरीब क्या करे, कहाँ से लाए। मगर इन जकात माफियाओं को, ये सदका चोरों को, ये फितरा खाने वाले मुल्लाओं को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि उम्मत की बेटियां बच्चियां वो हाल में हैं कि सदका जकात हम मदरसे मस्जिद के नाम पे लेना बंद करें, बड़े बड़े सेठों को लूटना बंद करें। वो जाके ये तो अवाम को चाहिए ना कि अवाम वोट लगा के अपने अपने घरों में। नहीं, इंशाल्लाह अवाम को तो बेदार करना पड़ेगा, अवाम को बेदार करना पड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ पैसा गरीबों को जाएगा, आपके मदरसों में, क्योंकि ये लोग, आप लोग काफिर बनाते हो, बिला वजह खद्दाम को काफिर बनाते हो, मुसलमानों को काफिर बनाते हो, तो हम आपको क्यों चल रहे? काफिर बनाने की तो फैक्ट्री है मुफ्ती साहब इनके पास। अरे साहब मैं बताऊं, मुजाहिदों को नहीं काफिर बनाया, काफिर बनाने की तो फैक्ट्री है इनके पास। तो सही, खद्दाम की बात तो अलग हो गई, होते इनको तो लोग ये अलग करते, चलो मैंने माना। तमाम सिलसिलों पे फतवे, आदमी खतीब इनकलाब उबैदुल्लाह खान आदमी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकर्रिर, उसको मुहद्दिस कभी ने काफिर करा दिया।
देखो अल्लामा पीर करम शाह गनी को, जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी, रियाल कुरान, उनको काफिर करार दिया। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की रियाल कुरान तफसीर लिखी, उनको गुमराह करार दिया। फाजिल बरेलवी से इख्तिलाफ क्यों किया? और ये कौन है? अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी, इनको काफिर करार दिया। ये तो फाजिल बरेलवी के बेटे के खलीफा थे ना, इनको भी काफिर। और जाहिद मिल्लत कुतुब नेपाल को काफिर करार दिया। और नसीम मिल्लत अभी उड़ीसा में थे, उनको भी काफिर करार दिया। और ये कारी रहीद्दीन बम्बई में इस्माइल हबीब मस्जिद में है, वो उलमा कौंसिल में बैठते थे, उनको गुमराह करार दे दिया। अब बताइए, अब मैंने कितनी बड़ी लिस्ट बता दी, अभी तो और इनके फतवे न जाने किस किस के ऊपर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बात समझ लो, जब आप जैसे होशियार समझदार लोग बरेलियत से तौबा कर रहे हैं और इतने लोग तौबा कर रहे हैं, इतने आलिम हम लोगों के कांटेक्ट में हैं जो अपना नाम नहीं लेना चाहते हैं कि बाबा जान अभी हमारा नाम जाहिर मत करो, बस थोड़े दिन की बात है। नहीं, हमारे नजर में भी हैं बहुत से आलिम, मुबारकपुर अशरफिया के आलिम भी हैं, बहुत सारे बेदार हो चुके हैं। नहीं, बहुत लोग अरे ये लोगों के फतवे, ये लोगों की फतवाबाजी, मतलब इनको अगर कोई हदीस एक मिल जाए जिसकी रिवायत भी बराबर नहीं हो और वो इनके मसलक के हिसाब से हो तो उसको चीख कर बोलेंगे। और अगर और ऐसी कोई बात जो सियासत्ता के सारे किताबों में मौजूद हो या बड़ी बड़ी हदीसें हो, उसका ये खुल्ला इनकार कर देते हैं। अब आपको मालूम होगा अल्लामा ताहिर कादरी, जिन्होंने अजमेर शरीफ में 1.5 घंटे तकरीर की थी, शायद आप होगा याद आपको। हाँ, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में है और दुनिया जामे अज़हर मिस्र उनको मानता है। अरे मिस्र में जाके तो तक़ियाबादी करके पढ़ के आते हैं जामे अज़हर मिस्र में। जामे अज़हर मिस्र में सब पहले खड़े होते हैं ना, वो इनके मामलात मानते जामे अज़हर वाले, फतवा उस्मानुल हल में इनको मानते नहीं है वो लोग। जामिया अज़हर वाले सुन्नी है ना, सब सुन्नी तो है, अपने जैसे कट्टर सुन्नी है, इनके फतवे के हिसाब से वहाबी है, देवबंदी है। तो फिर ये वहाँ क्यों जाते हैं, क्यों अपने नाम के आगे अजरी लिखवा रहे हैं? मत लिखवाए ना। मतलब अभी 10,000 मिलता है तो अजरी लगाएंगे, जामे अज़हर से पढ़ के आएंगे तो 20,000 तकरीर का मिलेगा, 40,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा। असल में क्या हो गया, ये लोगों ने जो रूल और रेगुलेशन बनाया है अपना ना, अल्लाह ने बहुत जल्दी इनको तोड़ देना इस रूल और रेगुलेशन को। अगर जामे अज़हर मिस्री आपके साथ चले जाना, इनके आलिमों को लेके 5 कहना, चल मैं दूंगा टिकट जामे अज़हर मिस्र का, जो तुम बताते हो जामे अज़हर वाले तस्दीक करा दो, हम तुम्हारे वहीं गुलाम हो जाएंगे। हाँ, अरे नहीं, तो आपका हंसते हंसते पेट दुखेगा। मेरा एक मुफ्ती से बहस हुआ तो बोले कि हमारे मौलाना साहब ने सऊदी में बैठकर और सऊदी हुकूमत को हराकर और वहाँ अपना डंका बजाया। तो मैं एक काम करो, डंका जो बजाया वो डंका कहाँ बजा, पहले ये बता। वहाँ के मामलात बदले, वहाँ अहले सुन्नत के हिसाब से तालीम दी जा रही है। डंका बजने का मतलब है कि भाई तुम अपनी किताब को वहाँ राइज कर दो, अपने मामले को वहाँ राइज कर दो। पहले देवबंदी थे, देवबंदी हटे, पहले हदीस आ गए, तुम्हारा मामला कहाँ बजा? अब पूरे अरब में तुम्हारा एक तो कोई मुझको बताओ कि जहाँ तुम्हारा डंका बज रहा हो। असल कहीं कुछ नहीं, ये खाली मतलब इनकी बातें हैं, ये इनकी झूठ है ना। अरे ऐसा एक और झूठ बोला, झूठा पैदा हुआ है दुनिया में फिरका। अच्छा आप ये बताओ कि दुनिया में कितने मुल्क हैं? सब आप तो नेट सब जानते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, दुनिया में कितने मुल्क हैं? हाँ, फिर भी मेरे ख्याल से 300 के आसपास है। बोलिए। नहीं 3 तो नहीं, उसने बताया 208 मुल्क है। हाँ तो मतलब वही तो चलो ठीक है, 208 मुल्कों में अब आप 57 इस्लामी मुल्कों में एक पाकिस्तान है, ये निकाल दो तो 56 तो इस्लामी जो देश हैं उनमें दावत इस्लामी वाले घुस नहीं सकते। घुस तो सकते हैं लेकिन वो अपना कारोबार नहीं कर सकते। 56 मुल्कों में इस्लामी, जैसे कतर है, दुबई है, और जो है कि लिबनान है, लीबिया है, बहुत सारे। तो ये कह रहे हैं हमारा काम 200 मुल्कों में हो चुका है। अरे तो 57 इस्लामी देश है सिवाय पाकिस्तान के, तुम्हारे 56 मुल्कों में कौन सा काम हो रहा है? और 56 मुल्कों निकाल दो तो 140 बचे या 145। अब 145 तुम कितना मस्जिदों झूठ बोल रहे हो कि 200 मुल्कों में काम हो रहा है हमारा? अरे बाबा आप मेरी बात नहीं समझे, ये 200 मुल्क का मसला नहीं है। इनका बस चले तो 2000 मुल्कों में अपना काम करवाने लग जाएंगे। अरे मिंबर पे इनको मुल्कों में जैसे जापान भी है, चीन भी है, चीन में भी ये नहीं जा सकते ज्यादा। अरे इनको तो झूठी बोलना है मिंबर से, फिर चाहे 2000 मुल्क बोल दें, उनको क्या लेना देना है? अरे अब मैं बोल कह रहा हूँ, इसमें से एक आदमी ने क्या कहा कि हमारे मतलब कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे 100 मुल्कों में पढ़ा जाता है। तो मैंने बोला बाबू 100 मुल्कों में नहीं, खाली 10 मुल्कों का मुझको वो भेज दे। हाँ मैंने सुनी थी वो आपकी वीडियो की, 10 मुल्क की बता दो। तो वो 10 भी नहीं बता। नहीं वो आपने अच्छा बताया था कि ये हो सकता है कि इंडिया के जाके लोग 50 मुल्कों में रहना तो वो पढ़ लेते हैं, वो अलग बात है। हाँ
اب ایسے یہ جو 150 ملک بتاتا ہے دعوت اسلامی والا، ایسے تو 2-4 آدمی سب کے ہی ہوتے ہیں. دعوت اسلامی والا کیا بولے گا؟ وہ تو دنیا اس وقت کا سب سے بڑا یزید اور منافق مروانی ہے. اس نے تو نعوذ باللہ اس نے تو کہا کہ مولا حسین وجود سے نہیں تھے کربلا میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کی نسل بے وجو ہو کے مرے. شیخ عبد القادر جیلانی مجدد نہیں تھے، یہ بھی بولا. ہاں تو ان کی نظر آپ دیکھو اصل میں کیسا ہے، اس کی بیچارے کا خواب ہے، وہ عطر بیچنے والے کا خواب ہے کہ وہ مجدد ہو کے مرے. سمجھے بات؟ ارے وہ شروع میں بہت صحیح تھا، جب اسٹارٹنگ میں کانپور میں آیا تھا نا، ہم نے دیکھا اسے تو بڑا صحیح تھا. جب جیسی پروان چلا نا، ہوائی جہاز ملا اسے، بس ہوائی جہاز ملتے ہی اس کا دماغ ہوتا. یہ سارے انگریزوں کے ایجنٹ ہے جناب مفتی صاحب، ان کو باقاعدہ فنڈنگ آتی ہے، باقاعدہ ان کا کام چلتا ہے وہاں سے. یہ کیا بات کریں گے، یہ سب انگریزوں کے دلال اور انگریزوں کے ایجنٹ ہے. ان کی باتیں کہاں تک سنو گے آپ؟ اچھا یہ بتائیے آپ کہ یہ 40 ہزار تنخواہ بانٹ رہا ہے دعوت اسلامی والا. یہ کھانے کا فیس بک میں پڑھا 40,000 ان کے مولوی کو تنخواہ ملتی ہے، جو یہ ہندوستان بھر میں ان لوگوں نے کھول رکھے نا. پہلی بات تو وہ ساری باتیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، مگر ایک بات آپ کی بڑی اچھی لگی اور اللہ نے چاہا، میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی سینے میں دین حق ڈالا، دین حسین میں آپ آئے، آپ نے بریلیت سے توبہ کیا. مولا پاک آپ کو صحتیاب رکھے، سلامت رکھے. ہم بیدار اس لیے ہوئے کہ ہوائی جہاز میں نے وہ ہوائی جہاز خود اپنی آنکھوں سے بمبئی میں دیکھا ہے. حاجی ملنگ کی درگاہ پہ میں گیا نا پہاڑی پر، تو اس پر وہ تھوڑا نیچے میں، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا ہوائی جہاز میں، تو وہ ہوائی جہاز کو میں نے اڑتے دیکھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ وہی ہوائی جہاز ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا بھی کچھ شاید وہ نظر آ گیا تھا. اور یہ رضا اکیڈمی میں ٹکٹ الاؤ، یہ تو اس کو جھٹلا نہیں سکتے. یعنی اس پر فخر کر رہے ہیں کہ جشن اعلیٰ حضرت ہوائی جہاز میں منایا گیا، اور ایک بار پانی کے جہاز میں بھی منایا گیا ہے. لیکن آج تک ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا جشن ہوائی جہاز میں نہیں منایا. اچھا یہ اگر مان لو سب نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کی نگاہ میں سب اگر کافر ہو جائیں، سب کافر، مدینے والے کافر، مکے والے کافر، اور تھوڑے جامعہ ازہر والے اگر ان کی بات نہیں مانے تو کافر، ہر سلسلہ ان کے لیے نہیں. جامعہ ازہر والے تو دیوبندی ہیں، ان کے فتوے سے یہ تو مجبوراً سنی بناتے ہیں ان کو اپنی جان بچانے کو. اچھا یہ ہوئی جان بات، بچانا ہے نا کہ پبلک کھا جائے گی. ادے پور راجستھان کے لوگ جو بہت کٹر سنی ہے، ناسک کے لوگ بہت کٹر سنی ہے، پور بندر کے لوگ، جب ان کو یہ راز معلوم ہو گیا، اگر انہوں نے اپنے 2 آدمی جامعہ ازہر بھیج دیے کہ یار جاسوسی کر کے آؤ جامعہ ازہر والوں کی، جب وہ اگر کر کے جانے پورا پول کھل جائے گا ان کا. جامعہ ازہر والے ٹوٹل دیوبندی ہیں ان کے حساب سے، ان کے فتوے کے حساب سے، مگر جامعہ ازہر ٹوٹل سنی ہے اپنے حساب سے، اپنے جیسے. دیکھیں آپ سنی ہو، ہم ایسے سنی ہے، لیکن ان کے حساب سے نہیں ہے سنی. یہ تو جان بچانے کو سنی بناتے ہیں ان کو. جامعہ ازہر والے وہاں ان کا فتاوی رضیہ نہیں پڑھا جاتا، نہ اس کی وہاں الاؤ ہے، اجازت نہیں ہے. میری جان پہلے میری بات سنو، میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ ارے ورلڈ میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے نامور شخصیت لوگ، اب ہندوستان میں جب قادیانیوں کا فتنہ اٹھا تو کون گیا قادیانیوں کو ہرانے کے لیے؟ اچھا یہ بتاؤ، کیا غلام قادیانی نے کبھی ڈائریکٹ یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں؟ وہ ڈائریکٹ نہیں کہا، اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا میں نبی ہوں. وہ گھما پھرا کر کے اس نے دعویٰ کیا، گھما پھرا کر، ڈائریکٹ نہیں کہا. اس نے تو باقاعدہ حدیث لکھی کتاب میں، لا نبی بازی کے اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن پھر بعد میں گھما پھرا کے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی پھر وہ گھما پھرا کے لایا. تو وہ یہ کہہ رہا 5واں مسلک نہیں ہے، مسلک 4 یہ بھی کہتے ہیں، یہ لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، مطلب گھما پھرا کے بات نہیں لانا ہے. ارے بابا وہ کیا بولتے ہیں سام محدث، وہ عراق کے ایک بہت بڑے 800 سال پہلے عالم گزرے ہیں، کیا نام تھا ان کا، جنہوں نے کہا تھا کہ 2 احمد نام کے لوگ دنیا میں آئیں گے اور گمراہ کریں گے. اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، دیکھو ان کا اچھا کچھ نام ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی، اگر قادیانیوں کا فتنہ اٹھا تو اس فتنے کو روکنے کے لیے کون گیا؟ پیر مہر علی شاہ سرکار گئے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں جب معاملہ دیوبندیوں کا زیادہ بڑھنے لگا تو سرکار فضل الحق خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، اور چشتیوں کی جان نہیں، انہوں نے بھی رد کیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کا زبردست رد کیا ہے.
मगर मैं ये बता रहा हूँ कि देवबंदियों के लिए हजरत फजल हक खैराबादी गए, कादियानियों के लिए सरकार पीर महली शाह गए। ये असल में लोगों को बताया नहीं जाता है। क्या होता है मालूम है, इनको मीठा मीठा खाने की आदत हो गई है। ये अपने खिलाफ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी किताबों का लिखाओ दिखाओ तो ये चिढ़ जाते हैं। और इनका तमाम आलम में झंडा गाड़ा हुआ है। एक भी झंडा कोई उखाड़ दे तो वो मुल्क मतलब इनसे छिन जाएगा, समझे। 200 कंट्री आपने कम बोल दिया है, 2000 कंट्रियों में इनका काम चालू है, है ना। और 100 मुल्कों में इनके सलाम पढ़े जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 56 मुल्क हैं। देवबंद तो सिलसिला साबरिया चिश्तिया भी है, वो आते हैं बाकायदा अदब से आते हैं, कभी वो हंगामा नहीं करते हैं। ये लोगों ने हंगामा शुरू किया है, उन्होंने उनका खुद सिलसिला साबरिया चिश्तिया है, बड़े बड़े आलिमों का। मैंने अभी एक किताब का एक हवाला मंगवाया है, जिसमें इस्माइल देहलवी ने नौज बिल्ला औलिया अल्लाह नबियों को भूत प्रेत चुड़ैल ये सब एक बराबर है, ये जुमला उसने इस्तेमाल किया है। हाँ, बाद में इन लोगों ने बताया तौबा कर लीजिए वल्लाह। अच्छा सुनो, और उसके आवाज में ठीक है तो देवबंदी था, और फिर मौलाना अहमद रजा खान साहब ने उसको काफिर कहने से मना किया है और कहा है कि उनके खिलाफ जबानदारी ना की जाए, वो सवाब है। अब बताइए ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी ये दोनों हवाले मेरे पास इंशाल्लाह आ चुके हैं दोनों। अरे इसी बात पर अल्लामा जफर अदीबी जो मुबारकपुर अशरिया पढ़ाते थे ना, इमामुल मंतिक थे, तो उनसे जब कहा उसामा रहमान की तस्दीक कर दो, हरफन ने इसको तस्दीक कर मना कर दिया, कहा कि हरफन तो कुरान को माना जाएगा, इस किताब को नहीं माना जाता। तो उनको मुबारकपुर अशरिया से निकाल दिया था। जफर अदीबी साहब जो अभी बहुत बड़े आलिम थे, कुछ टाइम पहले इंतकाल हो गया, मना कर दिया कि मैं नहीं तस्दीक करूंगा फतावा उसामा। अच्छा, ये मेरे पीछे पड़े हैं कि ये अनपढ़ है, ये फलाना है, ये धमाका है। अरे भैया ठीक है, अल्लाह करे। अच्छा, आप खुद्दाम की शराफत देखो आप, कि खुद्दाम जो भी हो, ये लोग कहते शिया, ठीक है शिया है, मशीयत इलाही है, लेकिन वो आपको मना तो नहीं करते ना कि आप 20 वक्त तरावी मत पढ़ो। यहाँ पर आपके तीनों इमाम आपके हैं, वहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात के हैं, अकबरी मस्जिद में, शाहजहानी मस्जिद में 30 पारे से कुरान की तरावी होती है। ये लोग कहते हैं कि वो फलाना है। अरे भाई, अगर 40 पारे मानते तो 30 पारे क्यों सुनते हो, कुरान 30 पारे क्यों पढ़वाते तीनों मस्जिदों में? पहली बात ऐसा है मुफ्ती साहब कि खुद्दाम, जैसे आपने कहा जामिया अजहर वाले सुन्नी है ना, वैसे खुद्दाम भी अहले सुन्नत वल जमात हैं और प्योर हुसैनी है, प्योर हुसैनी। अरे साहब, वो मुफक्किर इस्लाम मर्द कलंदर हजरत सरवर चिश्ती साहब बार बार मुसलमानों के लिए कितनी बार आवाज उठा चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज सैयद सरवर चिश्ती साहब के बेटे सैयद कामरान चिश्ती जिस मदरसे से पढ़ के आए हैं, जाके उस मदरसे में पता लगा लो। वो मर्द कलंदर है, वो कामरान चिश्ती मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद है। हाँ, अब ये क्या है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। जो बरेली नहीं हो पाया, जो बरेली नहीं बनना चाहता, जो बरेली नहीं है। अच्छा, मैंने अब ये भी देखा, आप भी जरा समझ रहे होंगे इस बात को, मैंने गौर किया है यूट्यूब में देख के, सरवर चिश्ती साहब का चेहरा जो पहले था, अब उससे कहीं ज्यादा रोशन चेहरा उनका नजर आता है, जब से वो बादशाह दाढ़ी हो चुकी है, और माशाल्लाह ऐसा लगता है चेहरे पर नूर हो और बहुत साफ सुथरा चेहरा उनका लगा। अच्छा, अब वो बेचारे देखो तौकीर मियाँ गए, तौकीर रजा, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है, मर्द कलंदर है, बहुत अपने वक्त के बहुत बड़े। अब तौकीर रजा को भी ये लोगों ने भगा दिया, नहीं वो हमारे नहीं है, वो अजमेर वालों का दलाल है, फलाना है, धमाका है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। साहब अकेले कम नहीं पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ेंगे, वो मर्द कलंदर हैं, सुल्तानुल मुजाहिदीन है। वो हिम्मत थोड़ी हारते हैं साहब, वो तो बहुत हिम्मत आदमी है, हिंदुस्तान का माना हुआ मर्द कलंदर। चलो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, पहली बात तो आपको हुसैनियत में आने की और आपका बरेलियत छोड़ने पर आपको बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। हुसैनी हूँ, मेरा तो नाम ही अथर हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप उनके बीच में रहकर आए तो उनके सारे राज आपको इंशाल्लाह मालूम है। अब इंशाल्लाह ये वजह है कि इमाम हुसैन पे लोग अलैहिस्सलाम नहीं कहते, न इमाम हसन को अलैहिस्सलाम कहते, इनके पेटों में दर्द होने लगता है। बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
हर हदीस में उन्होंने जहाँ जहाँ इमाम हुसैन का नाम आता है, सैयद फातिमा ज़हरा का, पहली बात साहब, अल्लाह के रसूल की हदीस है, खुद मौलाना अहमद रज़ा साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो मेरे बच्चों का हक नहीं पहचाने, जो अहले बैत का हक नहीं पहचाना, वो या तो मुनाफिक है, या तो हैजी, या तो हरामी। अरे हजरत पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुनियत तालिबीन में हर जगह इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम लिखा है। तो ये क्या उनसे बड़े, ये मौलवी उनसे बड़े आलिम हो गए जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा है मौलाना अहमद रज़ा साहब, ये मौलवियों को कह रहे हैं। नहीं समझा, मौलाना अहमद रज़ा साहब की रूह भी अपनी कब्र से ये लोगों को देख रही होगी, तो बोल रहे होंगे ये लोग ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मामले को। ये नाज़बियत और खारजियत में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये एक नया दीन ये लोगों ने गढ़ दिया, एक नया फिरका ये लोगों ने बना लिया, नया मसलक गढ़ दिया। अब जो इनको जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने गढ़ दिया था, वो जैसे कभी नया फिरका शकीली आया है, अब ये लोगों ने एक नया मसलक, पांचवा मसलक गढ़ दिया है जो इनको माने। इंशाअल्लाह ताला अजमेर शरीफ में फतह हजरत सरवर चिश्ती साहब और खुद दाम की ही होगी, हो गई, होती नहीं है। अभी जो लश्कर आप देख रहे हो, उस लश्कर में तमाम हुसैनी मौजूद हैं, तमाम मौलाई मौजूद हैं। अवाम जो सुन्नी मुसलमान है राजस्थान के, वो भी हजरत सरवर चिश्ती साहब के साथ ही खड़े होंगे। अरे यहाँ आकर के दूसरे के नारे, अरे हजारों लोग जो है, मैं लाख तो नहीं बोलूंगा, हजारों बरेली ऐसे हैं जो बेचारे ये बोल रहे हैं अंदर अंदर से कि सरवर चिश्ती सही हैं और अजमेर शरीफ ही अहले सुन्नत का मरकज है। हजारों ऐसे बरेलवी सुन्नी है। कल ही सुनी है उनकी क्लिप, वो साफ कह रहे हैं कि ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, तो वो साफ बोल रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इनके प्रोग्राम होते हैं अजमेर शरीफ में दरगाह के अंदर। साफ बोला उन्होंने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोला उन्होंने, सरवर चिश्ती साहब ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोला है। अरे बाबा, पहली बात तो एक बात बताऊं, इल्जाम चलो मान लो थोड़ी बहुत कमी मानते हैं, ठीक। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मुंह मत फुलवाओ, नहीं तो फिर मैं बोलने पे आ जाऊंगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ। दूसरी बार इंशाल्लाह जब आपकी और मेरी बात होगी ना, तो इंशाल्लाह खुलकर और तबसरा किया जाएगा, दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह।